ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आप। ओके, थैंक यू। पिछले 1-1.5 महीने से आपको मिलने का इंतजार था और वो मिलन की शुभ घड़ी आज आई है। तो आपका दिलो जान से बड़ौदा परिवार में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और साथ साथ चंपा बहन भी हाजिर है। चंपा बहन मॉरिशस से गायत्री बहन जी है। गायत्री कोऑर्डिनेटर है आप, और आज वो अपना अनुभव सुनाएंगे मॉरिशस से। पहले 2 बहनें सुना के गए हैं, रूपा बहन और वो गीता बहन, लेकिन आज विशेष अनुभव हम सुनेंगे हमारे आदरणीय बहन जी के द्वारा। हाँ भाई और बहनों, पहले मैं एक वीडियो आपको बताता हूँ और उसके बाद हम अनुभव सुनना शुरू करेंगे। तो ये वीडियो आप सबके लिए। Establishment of the Brahma Kumaris in Mauritius. Sisters from India were the main instrument sent to start spiritual services in Mauritius as from 1975. Since these early days, several of those sisters relayed each other successively to build a strong foundation of service here. These sisters included Didi Vedanti, Dr. Nirmala, Sister Shailu, Sister Bimla of Delhi, Somprabha Behen and Chandra Behen ultimately. Sister Chandra sustained services for around 40 years up to August 2015 when she left her mortal coil. Under her jurisdiction, the Brahma Kumaris was established as the Prajapita Brahma Kumaris World Spiritual University Trust since 1983 by way of an Act of Parliament, a unique status in the world of BKs. Present administrative structure. With the departure of Didi in 2015, the task of administering the affairs of the Yagya in Mauritius has been entrusted to a national coordinating team, a team comprising 6 main sisters coordinating 6 main centers of the island. These sisters are as follows: Sister Geeta, Director of BK in Mauritius and also cumulating the role of coordinator of QPIP Center and Savan District. Sister Gayatri, Coordinator of Global Peace House, the Northern District and the Inner Space Meditation Center in the capital city of Port Louis. She also cumulates the role of Chairperson of the National Board of the Trust. Sister Mala, Coordinator of Katwabon Center, Headquarters of BKs and the Inner Space Meditation Center in Eben. Sister Niru, Coordinator of Flax Center, the Eastern District and the Diamond Retreat House. Sister Rupa, Coordinator of Lighthouse Center and Kampo District. Sister Sangeeta, Coordinator of Bamboo Center and the Western District. The team is supported by a group of 35 surrendered brothers and sisters throughout the island. Expansion of services in Mauritius under the leadership of Didi Chandra, the brothers and sisters in the different centers, much service expansion took place. From humble beginnings with a unique center in 75, the BKs in Mauritius has now 6 main centers, a dozen of sub-centers, a retreat house near the seaside, 2 inner space meditation centers, running self-development program, an academy to dispense various training courses, a main center in Rodrigues, one of the outer islands of the Mauritius territory. Recognition. As in India, the BKs is now well entrenched in the Mauritian society, participating actively in the local community in collaboration with government authorities in programs for the betterment of the society. The service of teachers and facilitators of BKs are very often sought by schools, colleges, government authorities to conduct programs in subjects such as stress management, positive thinking, values, etc. The recognition of the BK's contribution for harmony and unity in the society is symbolized by the National Unity Award conferred by the government to the BKs in 1999. In BK statistics worldwide, Mauritius is cited as
having the highest number of bees in the world compared to the size of its population. Om Shanti. ओम शांति। भाई और बहुत सारा आइडिया तो इस वीडियो से ही मिल गया होगा, किस तरह से वहाँ सेवाएं चल रही है, कितनी बहनों का इसमें सहयोग है, कितने सेवा केंद्र है, और लास्ट में सारी डिटेल भी आप बाद में जब वीडियो आप यूट्यूब पे देखेंगे तो और डिटेल आप पढ़ पाएंगे। तो ये ओवरव्यू हमें मिला, लेकिन कैसे हमारे आदरणीय बहन जी गायत्री बहन जी ज्ञान में आए और किस तरह से आपने इस ज्ञान मार्ग में कदम आगे बढ़ाए, विघ्नों को कैसे पार किया, और कैसे इतने सुंदर, क्योंकि आगे दो महारथी बहनें हमें अनुभव सुना के गई है और दोनों ने एक विशेष बात खास तरीके से कही कि आज मॉरिशस में सभी लोग ब्रह्मा कुमारी को जानते हैं। योगी बनना एक अलग बात है, लेकिन जन जन तक संदेश पहुंचाया गया है तो ये सोचने वाली बात है कि कितनी मेहनत की गई होगी। तो उसके मुख्य आधार चंद्रा बहन और फिर हमारे आदरणीय गायत्री बहन जी बने हैं। तो आज विशेष अनुभव हम आपके मुख से सुनेंगे, हमें आज विशेष मौका मिला है, तो ज़्यादा समय न लेके गायत्री बहन आपसे गुजारिश है आप सुनाए। थैंक यू ब्रदर। आपको हम खास बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप अपना अमूल्य समय निकालकर सारे परिवार सहित यज्ञ के वडोदरा के सेंटर्स और सभी भाई बहनें इतने समय निकालकर, अमूल्य एनर्जी निकालकर सारे विश्व की आत्माओं का अनुभव सुनते हैं। मैं समझती हूँ आपको बहुत बहुत जैसे बाबा अपनी आंखों में रखता होगा कि आप लोगों ने ऐसे सभी एक जगह में रहते हुए, मतलब कि सारे विश्व की भाई बहनें जहाँ जहाँ है सभी का आवाज़ सुनते हैं। आप सैर कर रहे हैं सारे विश्व को बिना टिकट का, कितना अच्छा है। तो आपको भी कुछ खास अनुभव होता होगा, तभी तो आप आगे बढ़ रहे हैं। हमने खास कंप्यूटर में, इंटरनेट में देखा कि आप, तो सर्वप्रथम मैं आपको थैंक्स करती हूँ और साथ साथ आपको सभी को मॉरिशस में रिसीव कर रहे हैं एक फ्लावर्स के द्वारा। देखो ये फूल जो है ना, इसको कहते हैं एंथुरियम फ्लावर। ये मॉरिशस में बहुत स्पेशल होता है। तो जब भी बाप दादा का सीजन होता था तो हम सभी यहाँ के जो बहनें थे मतलब बुके लेकर जाते थे, तो बाबा के पीछे वो जो डेकोरेशन डालते थे खास यहाँ से भी निकलता था। साथ साथ मैं समझती हूँ दूसरे जगह से भी आते होंगे, परंतु ये फूल द्वारा हम आप सभी को यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं मॉरिशस में। गीता बहन ने, रूपा बहन ने बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने मॉरिशस के संक्षेप रूप में कुछ तो दृश्य आपको दिखाए। अभी मैं समझती हूँ कि मैं जब ज्ञान में कैसे आई, मैं छोटेपन से बहुत मेरा इंटरेस्ट था आध्यात्मिकता में, तो मैं अपने अपने तौर पर रिसर्च कर रही थी। मेरा माता जी के ओर से वो लोग आर्य समाज में थे और पिताजी के कुछ और थे। तो माता जी जब वो बैठते थे, संध्या करते थे, शाम को हवन करते थे, तो मुझे बहुत जैसे अंदर डीप इंटरेस्ट होता था कि ये भगवान कौन है। आर्य समाजी में ऐसे है कि कहते हैं भगवान निराकार है। तो मैं यूज्ड हो गई थी कि भगवान परमपिता परमात्मा निराकार है। और साथ में जब देखते थे कि लोग इतने देवियों की पूजा करते हैं, इतने इतने रूप में भगवान को मानते हैं, तो उसमें भी तो कुछ असलियत होगी, कुछ ट्रुथ तो होगा। तो मैं उसमें भी ढूंढना थोड़ा बहुत, जैसे मन में मॉरिशस के मंदिरों में सैर करने गया,
तो मुझे कुछ पता नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसे ज्ञान का प्रकाष्ठा तो नहीं था, परंतु मेहनत बहुत था। और भारत के प्रति हम लोग यहाँ पर मॉरिशस में 5 जनरेशन से यहाँ के जो इंडियंस हैं बसे हुए हैं। तो हमें ज्ञान भारत का पता नहीं था, परंतु हम भारत को अपनी मदर लैंड समझते थे। तो भारत के प्रति हमारा बहुत बहुत प्यार था, ढूंढते रहते थे। और हमारा जो कोशिश था भगवान को प्राप्त करने को, जब मैं इस नौकरी करती थी, मैं गवर्नमेंट में 23 इयर्स गवर्नमेंट सर्विस अनेका मिनिस्ट्रीज में कार्य करती थी। तो मैं जब एक मिनिस्ट्री में थी तो वहाँ पर मुझे एक मुस्लिम फ्रेंड थी, उसका नाम था बिल्किस। तो वो भी जैसे बहुत बहुत उसको भी रुचि थी स्पिरिचुअलिटी में। तो वो मेरी रुचि को देख रहे थे, हम दोनों एक साथ मिलते थे और हम कहते थे कि चलो हम कुछ कोशिश करते हैं कि हमारा स्पिरिचुअलिटी कहाँ तक बढ़े हुए है। तो हम लोग अपने आपस में बोलते थे कि मैं इस वक्त इस डेट को आपसे बात करूंगी, आप भी मेरे से बात करना, हम लोग संकल्प से बात करेंगे, टेलीपैथी। तो कोशिश करते करते कुछ समझ में नहीं आया। तो वो बहन ने कहा कि देखो मेरे घर के पास एक शिवानंद आश्रम है, आप चलेंगे? मैं सुना रही थी कि जब मैं ऑफिस में कार्य करती थी एक मिनिस्ट्री में, तो मेरे एक सखी थी, उसका नाम था बिल्किस। वो मुसलमान धर्म का थी, और वो उसको भी जैसे आध्यात्मिकता में बहुत रुचि थी। तो हम लोग आपस में परमात्मा के बारे में बात करते थे। तो उन्होंने बोला कि चलो हम कोशिश करते हैं टेलीपैथी द्वारा, मतलब हम संकल्प द्वारा बातचीत करेंगे। तो डेट टाइम फिक्स किया, परंतु हमको जैसे कम्युनिकेशन नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा अभी और ढूंढना है और ढूंढना है। तो एक दिन उसने बोला कि मेरे घर के पास एक शिवानंद आश्रम है, आप चलेंगे? तो मैंने बोला हाँ चलेंगे। तो हम दोनों, बहुत बरसात थी उस दिन, फिर भी हम लोगों ने सोचा कि चलो हम देखते हैं वहां पर क्या है। तो जब हम वहां पर गए, वो जो आश्रम थे, वो उसके सामने एक जैसे कनाल था, जिसको कहते हैं नहीं, मतलब बहुत बड़ा खड्डा था। और खड्डे के पास उसके उस पार बहुत बड़ा पहाड़ी था। तो हम वहां पर बैठकर सारी पहाड़ी को देखते थे और वहां पर जो खड्डे थे देखते थे। और हमारे पीछे जो था, वो जो स्वामी शिवानंद का जो मूर्ति था, वहां पर जो लोग वहां पर बैठते थे, अपने ध्यान करते थे, तो मैं भी वहां पर बैठ गई। जब मैं बैठ गई तो एकदम शांति मुझे अनुभव हुआ। और उस शांति में मैंने महसूस किया कि मैं बहुत बड़ा 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 बनता जा रही हूँ। मतलब हमारा जो साइज है ना, बहुत ऊंचा ऊंचा, पहाड़ से भी ऊंचा बन गया। तो मैं डर गई, बस घर वापस आ गई। परंतु मेरे को जैसे वो खोज और जैसे उसमें पुल थी, खींच और हो गई। तो फिर एक दूसरे ऑफिस में जब मैं काम करने गई, हम ट्रांसफर होते थे एक मिनिस्ट्री से दूसरे। तो वहां पर मेरा एक कजिन थी, चाचा की बेटी थी, वो संस्था में जाती थी। वो और उसकी फ्रेंड दोनों ऑफिस में जैसे आस पास में थे। तो मुझे मुझे मिलने आते थे और मैं उनको मिलने जाती थी। तो उसका जो फ्रेंड थी ना, उसका इतना अच्छी स्वभाव थी, मैं जैसे उससे जैसे इम्प्रेस हो गई, प्रेरणा प्राप्त किया। तो फिर हमने बोला चलो शुरू करते हैं। तो जब कोर्स शुरू किया तो हमारे जो कोर्स करने वाले थे, वो दो बहनें थी, डॉक्टर निर्मला थी और विमला। विमला बहन जो दिल्ली का चांदनी चौक का था, वो भी मॉरिशस आई थी। तो इन बहनों का जो समझानी थी, बहुत अच्छे लगे। और साथ साथ जैसे कि अभी हम कोर्स पूरे ही किए थे, तो कजिन ने पूछा कि आप मुरली सुनते हो? तो मुरली, तो जब मैं उसने बोला मुरली, तो मैंने सोचा वो कांट का मुरली, कृष्ण का मुरली तो हमने नहीं सुना है, अभी तो सुनना है। तो मैं फिर गई तब समझ में आया कि मुरली क्या है। तो जो पहली मुरली साकार मैंने सुनी, आज तक मुझे याद है कि उसमें बाबा कहते थे कि हम सभी बहनों को ज्ञान नदी बनना है, बाबा है सागर, हमको बहना है। और वो जैसे छाप लगे कि मुझे वैसे ही बनना है। फिर साथ साथ जब वो अनुभव, जैसे एक दिन जब वहां पर भर्ती कर रहे थे, तो वो क्या है ना, हमारे घर में वो घर वाले जैसे माता जी, पिताजी, भाई, कोई नहीं पसंद करता था कि मैं इस सेंटर पर जाती।
क्योंकि शुरू शुरू में ब्रह्मा कुमारी का वो लोग सुने थे कि ब्रह्मा का मारिया जो है ना, सभी धर्मों से कुछ कुछ निकाल कर वो एक बड़ा धर्म अपने आप बना लिया है। तो वो बोलते थे क्या मिशन में जा रहे हो, तो हमको मना करते थे, तो मैं ऑफिस से भाग कर जाती थी छुट्टी लेकर। तो एक दिन जब मैं गई ना, तो वहां पर विमला बहन कहती है कि देखो कल आपने भट्टी मिस किया। मैंने बोला भट्टी क्या है, तो बोला भट्टी योग है। तो उसने बोला देखो आपका मैंने रखा है आपके लिए खास स्पेशल गिफ्ट। तो उस समय तो हमारा संस्था इतना जैसे डेवलप नहीं हुआ था, तो उसने एक रुमाल निकाला। रुमाल में छोटे छोटे चिटकियां थी, हाथ से लिखा हुआ था कुछ बातें। तो मेरे को वो चुटकी जब मैं निकाली, तो उस चुटकी में था ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय लगती है। मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने सोचा ये कोई बख्शिश है या क्या है, ताबीज जिसको कहते ना। तो मैं जब नौकरी करने जाती थी, वो ताबीज डालकर अपने बैग के पॉकेट में रखती थी। फिर जब ज्ञान के आस्ते आस्ते जलते गए, तो समझ में आया कि बाबा चाहते हैं कि हम ज्ञान में और रुचि बढ़ाई। तो फिर क्या हुआ कि सचमुच ही मैंने देखा कि हमारे जीवन में हमको बहुत जैसे इंटरेस्ट था, और बढ़ता गया बढ़ता गया। तो मुझे ये आज तक वो रुचि है कि ज्ञान की गुह्यता में जाए, उसका डेप्थ में जाए, और डेप्थ और डेप्थ में जाए, ताकि ऐसे समय हो जो हम अपने वाइब्रेशन से, अपने संकल्प द्वारा इतना शक्तिशाली सेवा करें। क्योंकि देख रहे हैं वो जो समय चल रहा है, अभी सेवा करने का मौका जैसे एक एक को कोर्स देने का बहुत कम समय दिखाई दे रहा है। तो इस गुह्यता से मैं आगे बढ़ती बढ़ती बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करती आई हूँ। तो फिर हमारा 1983 में समर्पण हुआ। शायद गीता बहन ने सुनाया होगा कि दादी चंद्रमणि आए थे। तो एक बहन ने बोला कि चलो सारी कुमारियों का समर्पण कराएं। तो समर्पण भी भाव जैसे उतना क्लियर नहीं था, परंतु धीरे धीरे जैसे समझ में आज मैं कहूँ, तो समर्पण का जो रहस्य है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। परंतु उस समय मेरे को अच्छा लगा कि सेंटर पर आकर रहे, सेवा करे, तो मैं आ गई। फिर सेवा में, फिर सेवा के क्षेत्र में हमारा जो आंख खुलने वाला वो क्या कहेंगे इवेंट था हमारा 1986 में। एक प्रोग्राम चल रहा था सारे विश्व में, शायद आपको याद होगा, भारत में इतना नहीं परंतु सारे सारे वर्ल्ड ओवर एक प्रोग्राम था, उसका नाम था मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील। उसमें वो यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम था। तो यूनाइटेड नेशंस द्वारा सभी देशों में जैसे हम कलेक्ट कर रहे थे कि किन किन देश, जितना जहाँ जहाँ भी हमारे संस्था थे, तो सभी लोगों ने तीन प्रकार से शांति की, जैसे पब्लिक से शांति की जैसे कलेक्शन कर रहे थे। तो पब्लिक से हम लोगों ने भी प्रोग्राम किए थे। तो ये जो प्रोग्राम जो तीन प्रकार का जो हम ढूंढ रहे थे, देखेंगे कौन सा देश सबसे ज्यादा शांति का मिनट्स वो यूएन को पेश करेंगे। तो वो तीन था, एक तो प्रेयर्स, लोगों को कहते थे कि आप मेडिटेशन नहीं जानते हैं तो आप प्रेयर्स करें या सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स निकालें। और तीसरा है मेडिटेशन। तो मेरे को उस समय वो साइंस इतना भी बढ़ा नहीं था, अभी अभी फैक्ट्स निकला था। तो हम लोगों ने बहुत जैसे एक साथ तीन चार बहनें मिलकर ऑफिस संभालते थे। तो उस प्रोग्राम में हमने देखा बाबा का चमत्कार, बाबा का जो स्वरूप है, कहते भगवान तो भगवान ही। तो वो प्रोग्राम में हमको इतना इतना सक्सेस मिला, जो आंख खुलने लगा। और उस प्रोग्राम में क्या हुआ कि देश के जो प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट थे और लीडर ऑफ अपोजिशन था, सब शामिल होकर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए थे। फिर उसके बाद हुआ ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। वो भारत में भी बहुत बड़े बहुत स्केल पर हो रहा था। तो ग्लोबल कोऑपरेशन ऑफ द बेटर फॉर ए बेटर वर्ल्ड, उसमें 5 द्वीप का, यानी द्वीप कहे या कॉन्टिनेंट्स कहे, तो उन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव जो आए थे, तो यूनिवर्सिटी के आंगन में एक बहुत बड़ा जैसे यूं कहे, क्या कहेंगे शब्द नहीं आता हिंदी में, वो जैसे एक मॉडल बनाए थे कि कैसे शांति, ये जो ग्लोबल कोऑपरेशन सारे विश्व का सहयोग से कैसे हम सारे 5 कॉन्टिनेंट्स को भी मिला सकते हैं। तो वो उसका वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का बहुत धूमधाम से हुआ था।
तो ये जो प्रोग्राम थे ना, हमने देखा सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि मुझे ये एहसास हुआ कि शिव बाबा करण करावहनहार, चाहे हमारा कैसे भी अनुभव हो, परंतु हमको चलाकर हमारे द्वारा वो सारा कार्य करता रहता है, और हमको आगे रखकर वो सारा गुप्त रहते हुए भी जैसे कि कैसे उसका काम चलता है, चमत्कारी का काम। फिर मैंने आपको सुनाऊं कि ये जो हमारे मेरे को दूसरा जी रुचि है कि मुझे सारे यज्ञ का जो एंसेस्टर्स है, पूर्वज कहे, उन लोगों से मुझे जैसे, भले मैं मधुबन में नहीं आई हूँ, इतना समय मैं नहीं रहती थी, भले मैं भारत के भाई बहनों से परिचित भी नहीं हूँ अभी तक भी, बहुत कम हम भारत के भाई बहनों से परिचित है, क्योंकि हम सिर्फ मधुबन आते हैं, 2 सप्ताह रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये मैंने देखा कि जब हम लोग जैसे मुरली द्वारा हिंदी सीखे, फिर साथ साथ जो हमारे जो पूर्वज है ना, तो हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सारे जो पूर्वज है, मैं बताऊं, दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी, दादी गुलजार, दादी गंगे, दादी मनोहर, सब आए थे। तो कुछ भाई भी आए थे, जगदीश भाई, निर्भय भाई, ब्रिजमोहन भाई। तो मैं सभी से जो मैंने सीखा है, कम से कम एक एक लाइन सुनाऊं। देखो, दादी प्रकाश मणि से मैंने ये सीखा, अभी तक सीख रही हूँ, कि कैसे वो, उसको जैसे स्पेशल योग लगाना नहीं पड़ती थी, मतलब बाबा खुद उनको याद करते थे, क्योंकि वो सारे जो निमित भाव था ना, निमित निर्माण और निर्मल वाणी, मैंने देखा। और जब मॉरिशस आए थे ना, तो जो पर्सनल मुलाकात हुई थी, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि दादी स्वयं बाप दादा के समान है, और उसके अंदर वो अपनापन इतना इतना बहुत है, जो दिल को जैसे, क्या कहे, दिल में समा जाता है। फिर दादी जानकी से हमें बहुत कुछ सीखा। हर साल जब जाते थे ना, तो दादी जी से खास मुलाकात निकाल कर मिलते थे। तो दादी के साथ हम ये सारे साल का जो मुझे पुरुषार्थ करना था, तो मैं दादी से प्रेरणा लेती थी। और दादी से हमने सीखा कि परमात्मा शिव बाबा को प्यार करना क्या क्या है, मतलब दादी का जीवन कहानी। फिर दादी जो चंद्रमणि थे, उनके द्वारा मैंने ये जो निर्भयता का जो लेसन था, वो दादी से सीखे। फिर दादी मनोहर तो हमारे तो बहुत फ्रेंडली थी, इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी। जब वो आई ना, तो हमको बोटिंग पर ले गई थी। बोटिंग करते करते उन्होंने जो गीत, यज्ञ के गीत थे, तो सारे गीत हम लोगों को सिखाने की कोशिश करती थी, परंतु वो उस वक्त हमको सारा आता नहीं था। परंतु ये जो समय उनके साथ बिताए ना, इतने अभी आंख आंख के सामने वो सारे दृश्य आ रहे थे, कि कैसे वो हम लोगों को मिलाकर कहते थे, चलो विष्णु डांस करें। और हमको तो समझ में नहीं आता था कि अभी क्या सिखा रही है दादी, परंतु जैसे उसका जो नेचर थी ना, इतने मिलनसार, इतने स्वीट, इतने लविंग, तो वो उसका भी जैसे हमारे ऊपर बहुत प्रभाव रही हुई है। और फिर दादी रतन मोहिनी का मैं क्या बताऊं, दादी जब आई थी तो हमने कभी सुनाई देता है। ओके, तो ये जो दादी रतन मोहिनी आई थे ना, तो दादी रतन मोहिनी दादी जानकी से खास परमिशन लेकर कहा कि मुझे इन बहनों को ट्रांस मैसेंजर का मैं कुछ इन लोगों को अनुभव दिखाना चाहती हूँ। तो उन्होंने एक बहन को लाए थे जयपुर से, उनका नाम था, मैं समझती हूँ चंद्रा, ऐसे कुछ नाम थे, सारा नाम नहीं याद आता है। परंतु वो जो बहन थी ना, वो ट्रांस में जाती थी। तो वो सचमुच वो बहन ट्रांस में गई, और कृष्ण की आत्मा उसके अंदर आई। तो वो जैसे कृष्ण कैसे वो रास गोपियों के साथ करते हैं, वो सारे दृश्य। और मुझे उसमें एक खास अनुभव ये हुआ कि जब वो दादी ने कहा कि कौन कृष्ण की आत्मा को रिसीव करेगा गोदी में, तो हमने वो बहन को देखा, बहन इतने बड़े हैं, हम सोच रहे थे कि इतना इतना बड़ा बहन हमारी गोदी में बैठेगी तो कैसे हाल होगा। तो हम तो अचरज हो गए, हमने बोला नहीं नहीं नहीं, हम नहीं। तो दादी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बुलाती हूँ। तो वो सचमुच आ गए। अब वो जो बहनों को वो रास सिखा रही थी,
तो सबको हमारा सारे जो हाथ थे ना एक दूसरे को चेन में ऐसे बोला पकड़ो पकड़ो पकड़ो। फिर वो हम दूसरे बहन थे ना ऐसे हाथ में हाथ, तो वो आकर यहाँ बैठी, सचमुच ही बैठ गई। तो हमने सोचा इसका वजन तो बहुत बड़ा होगा, परंतु वजन इतना हल्का, जो मुझे इसके द्वारा भी समझ में आया कि ट्रांस मैसेज क्या होता है। वो जो महसूस होना चाहिए कि सच्ची में बाबा कहते हैं हमारा शरीर अति हल्का होगा, तो हमने जैसे अनुभव करके देखा तो बहुत बहुत जैसे हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ में हमको ये जैसे एक लैंडमार्क हो गया है, कभी भूल नहीं पाएंगे। फिर साथ साथ हमने देखा कि दादी गंगे जो आए थे ना, तो बोला जैसे उनके द्वारा हम लोग अप्रिशिएशन, मतलब कभी हमको पता नहीं ना कि दूसरे देश में लोग कितना मेहनत करते हैं, तो बोला आप लोग इतने खुश नहीं हो दिखाई देते हो। तो उसने सिखाया कि कैसे हम लोगों को ज़्यादा अप्रिशिएशन होना चाहिए। और जगदीश भाई जब आए थे तो हमारा तीसरा जो प्रोग्राम था, ग्लोबल नहीं दूसरा जो था ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, बहुत से सेमिनार कर रहे थे। तो जगदीश भाई आए थे उस सेमिनार में। तो जगदीश भाई ने जो हम लोगों को, छोटी बहनों को ऐसे आदर से सम्मान से एड्रेस किया, तो वो भी जैसे दिल को जैसे सचमुच ही बहुत जैसा छाप लग गया कि इतना बड़े भाई होते हुए इतना यज्ञ का जैसे वीआईपी कहेंगे, परंतु उनके अंदर वो इतना जैसे नम्रता, इतना भाव है। तो हमको ये भी बहुत अच्छा लगा। फिर निर्भय भाई जी ऐसे कहते थे कि हम आप सभी देश विदेश के भाई बहनों को देखते हुए मुझे जैसे प्राइड होता है, गर्व होता है। ऐसे ऐसे हर जो बड़े बड़े हैं ना बहुत अच्छी। परंतु जो हमने दीदी चंद्रा से सीखे, और जो हमारा रीजनल हेड्स है, 4 रीजनल हेड्स को हम सभी जानते हैं। एक है दीदी मोहिनी, जो चंद्रा बहन की जो बड़ी बहन है, उनके अंदर वो जो रॉयल्टी बाप समान बिहेवियर देखकर आज तक भी हम उनके क्लास रोज सुनते ही रहते हैं। फिर जो है वेदांती बहन जी को, दीदी वेदांती में हमने देखा कि उसमें वो सारा यूथफुल, मतलब ही उसके उसको एज उसके उसका एज जैसे उसके जो एक्टिविटीज है ना, उसके एक्टिविटीज अनुसार दिखाई देता है कि एज का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ है। वो जैसे बुद्धि में अभी तक बहुत यंग है, और सभी को जैसे हम सभी को जैसे प्रेरणा देती रहती है। उसको देखकर हमें भी जैसे बहुत से प्रेरणा आती है। फिर डॉक्टर निर्मला जो हमको कोर्स किए थे, उनको भी हम अपने माँ समझते हैं। उन्होंने हमको ये सिखाया एक नामी और इकोनॉमी का पाठ। जब हम उनके साथ रहते थे तो हमने देखा कि वो एक संकल्प भी, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती है। तो आज तक उसका छाप हमारे जीवन में है ही है। फिर साथ में जो विमला बहन थी दिल्ली का, उसके द्वारा भी हमें बहुत प्राप्त हुई। तो ये सब बहनें, और दीदी चंद्रा से खास हम कहेंगे, बहुत से जैसे 40 साल शायद वो यहाँ पर थे। तो दीदी का जो स्वभाव था ना, बहुत जैसे सॉफ्ट एंड जेंटल और बहुत स्वीट, बहुत केयरिंग, जैसे स्थूल रीति से वैसे सूक्ष्म रीति से, आध्यात्मिकता से बहुत ध्यान रखती थी। और एक मल्टी फासेटेड सोल थी, मतलब उसके अंदर बहुत से ऐसे खूबी थी। तो उसको किचन में भी भोजन बनाने में वो सिंधी, वो जो रेसिपीज थी हमको सिखाए थे। फिर साथ साथ दीदी का जो एकदम स्टिचिंग में भी उसको जो जानकारी थी, यूँ कहे कि उसका जो एक एक शब्द कभी कभी ऐसे बात जैसे अभी बहुत याद आती है, क्योंकि अभी तो वो है नहीं, परंतु उसका जो अनुभव हमको दिया ना, तो वो भी हमको मदद करती है। तो दीदी क्या थी, मैं आप 2 बातें सुनाती हूँ। एक तो वो कभी कहती थी, ऐसे मत कहो कि आपको समय ही नहीं है, सभी को वही समय मिल रहा है, दैट 24 आवर्स सभी को है। आप कैसे क्यों कहते हैं कि समय नहीं है? तो जब भी मुझे ऐसे लगता है कि प्रेशर आ रहा है, टेंशन है, तो मुझे उसकी बात याद आती है कि नहीं नहीं, टाइम हमको निकालना होता है। सभी को टाइम मिला है, बराबर टाइम मिला है। फिर दूसरी एक बात उसको बहुत याद आती थी। एक बार हमको याद है, पब्लिक गार्डन में गए थे, एनवायरनमेंट प्रोग्राम कर रहे थे। तो उसमें बहुत बड़ा बगीचा बना, बगीचा है ना, गार्डन। तो वहाँ पर हम लोग वो जो जो उन्होंने बाबा की प्रेरणा अनुसार एक बात सुनाई कि देखो, हरदम हमको ये 3 घर है हम सभी को, ये 3 घर को हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। एक घर तो हमारा शरीर है, दूसरा घर है जो घर का शरीर है, और तीसरा है ये जो प्लैनेट है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैं ऐसे, वैसे तो मैं नेचर, मेरे को एक
एक इंटरेस्ट बहुत है प्रकृति में। तो अभी अभी हम लोगों ने प्रोग्राम किए थे, अभी जैसे हमारे पास तो लॉकडाउन तो नहीं है, सारी दिन एक्टिविटीज चलता ही रहता है, फिर भी हमने सोचा कि देश विदेश में जैसे वो सभी तरह से ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं, तो चलो हम भी ट्राई करें। तो हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का 21 डेज हमने ऑनलाइन प्रोग्राम रखा। उसमें 6 दिन हम लोगों ने पब्लिक के लिए ओपन किया। तो पब्लिक के लिए जब ओपन किए तो हमने शांति का जो गुण है वो हमने बोला कि चलो हम सब मिलकर, पब्लिक और हम साथ मिलकर, हम जो 5 तत्व है 5 तत्वों के ऊपर कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ योग करेंगे, कुछ प्रकाश देंगे। तो उसके द्वारा 1000 से ज्यादा जैसे लोग रुचि दिखाई। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा शांति का। तो वो जो जैसे लगन लग गया कि ऑनलाइन भी कुछ स्पेशल प्रोग्राम जैसे आप बना रहे हैं, तो हमने दूसरा जो प्रोग्राम लिए वो कैसे हम मनुष्य से फरिश्ते बन सकते हैं। तो मनुष्य कैसे सोचता है, फरिश्ता कैसे सोचता है, तो उसके बारे 18 डेज 18 दिन हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखे थे। उसके बाद ये जो नवरात्रि आए, तो नवरात्रि का जो 9 जैसे हमने देखा कि सारे विश्व में और खास भारत में तो हम देखे एक से बढ़कर जो दूसरे बहनें जो नवरात्रि देवियों के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं, लगता है कि सारा सागर नीचे, ज्ञान का सागर नीचे उतर आए हैं कि हर एक बहने एक दूसरे से अच्छे अच्छे पॉइंट निकाल कर इतना अच्छे ढंग से सुनाते रहते। तो हम लोगों ने अपनी क्रियोल भाषा, यहाँ का जो भाषा है क्रियोल भाषा, तो क्रियोल भाषा में हम लोगों ने ये 9 दिन रखे हैं, कल परसों समाप्त होने वाला है। तो हम क्या करते हैं उसमें जो इंग्लिश है, जो फ्रेंच है या जो हिंदी है, तीनों को मिलाकर, क्योंकि यहाँ पर 3-4 भाषा तो है ही है, तो हिंदी समझने वाले हिंदी से लाभ उठा सकते हैं, क्रियोल समझने वाले क्रियोल में समझ सकते हैं। तो इसका भी हम कुछ खोज करते हैं। तो जब मैंने इसमें खोज किया खुद का, तो मैंने भी देखा कि बाबा कैसे हमारा बुद्धि यानी बाबा के ना कपाट खोलता है। तो हमको जैसे एक एक रुचि से जो एक एक जो अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं, उसका जैसे जो डेप्थ है ना, बाबा कहते गुह्य ते गुह्य, क्योंकि बाबा तो सागर है ना, तो कितने लहरें हैं, तो एक जो अस्त्र शस्त्र है उसके पीछे कितना रहस्य है, सिर्फ एक नहीं है। तो हम लोग ने भी इसमें जैसे ढूंढते ढूंढते बहुत अच्छे अच्छे कुछ जैसे रहस्य हम लोगों ने भी निकाला। जैसे कि जो शंख है ना, तो कहते हैं शंख सागर से निकलता है। तो ये जो सागर से निकलता है तो मतलब जो आवाज उसमें निकालते हैं तो बहुत दूर तक जाता है। वो आवाज शंख का नहीं है, वो आवाज है आत्मा। जितना हम अपनी अनुभूति करते हैं तो हमारा जो अनुभव की वाइब्रेशंस या लहर है बहुत दूर तक फैलता है। और फिर मैं मोहिनी बहन को सुन रही थी, तो मोहिनी बहन कहती है कि ये जो शंख ध्वनि है ना, हमारे जो वाणी है उसके द्वारा शंख जैसे वाइब्रेशंस के साथ साथ जो भी बोलते हैं वो वरदान के रूप में हो जाता है, हम वरदानी बोल बोलते हैं। वैसे एक दूसरा है जो कहते हैं जो तीर कमान दिखाते हैं, तो कहते हैं ये जो मुख है ना, ये है जैसे बो दिखाते हैं, और जो शब्द निकलते हैं ना वो तीर, वो तीर के समान हो जो आत्मा को जो हृदय है उसको घायल कर दे, ताकि वो उसका टचिंग हो कि चलो अभी भगवान के पास जाने का समय आ गया है। तो ऐसे ऐसे मेरा रुचि तो ये जो नवरात्रि थे। फिर साथ साथ मैं ज़्यादा स्टडी भी करती हूँ, मुझे बहुत जैसे इंटरेस्ट रहता ही रहता है। तो मैं एक और बात आपको सुनाऊं कि मुझे छोटेपन से एक कहानी बुद्धि में थी। वो कहानी थी, कहानी नहीं है, एक सच्चाई की बात है। कहते हैं कि सारे विश्व में एक ऐसी जगह है समुद्र के पास, एक अमेरिका में एक जगह है उसको कहते हैं मियामी। तो मियामी के पास एक एक ऐसे एरिया है, जगह है समुद्र में, सागर में, उसको कहते हैं ट्रायंगल, बर्म्यूडा ट्रायंगल। यहाँ पर क्रियोल में कहते हैं ट्रियांगल de Bermude। उसमें बताते हैं कि बहुत से ऐसे जो लोग गए हैं, शिप के शिप जो गए हैं, वो एकदम अंदर लॉस्ट हो गए। उनका पता नहीं, आज तक भी पता नहीं कि वो शिप कहाँ है, वो लोग जो थे शिप में कहाँ चले गए। मतलब एकदम अचरज की बात है, वो सब अंदर घुस जाते हैं फिर निकलते नहीं है, एक एक साइन भी नहीं है कि वो लोग कहाँ चले गए हैं।
तो मैंने सोचा कि मुझे भी ये पता होना चाहिए क्या है ट्रायंगल ऑफ बर्म्यूडा। तो मैं एक बार, ज्ञान में नहीं थी, तो मैंने एक बार सुना, एक जो पायलट थे ना वो कुछ सुना रहा है, तो मुझे वो समझ में नहीं आया। एक सप्ताह हुई है जो मुझे फिर से वो क्या कहेंगे, यूट्यूब में दिखाई दिया। तो मैंने बोला चलो इसको मैं आप ध्यान से सुनूं कि वो क्या सुना रहा है। तो उसने सुनाया कि वो जो जहां से निकल कर मियामी में उतरता है वो आधे घंटे का वो जर्नी है, आधे घंटे का है। परंतु उसने बोला कि मैं तो रोज ये रास्ता करता ही करता हूँ, परंतु मुझे अचरज ये हुआ कि जब इस बार मैं वो सफर कर रहा था पायलट, तो देखा कि एकदम अंधेरा अंधेरा छा गया। वो प्लेन के अंदर भी अंधेरा है, सारे लाइट्स ऑफ हो गए। और ये जो बोर्ड है ना जहाँ पर वो साइंस दिखाते हैं, लाइट्स दिखाते हैं, वो सारी लाइट्स का जो नीडल है ना ऐसे सुई, वो ऐसे ऐसे हिलता है और जैसे अंधेरा ही अंधेरा, ना आगे दिखाई देता है ना प्लेन में दिखाई देता है, बस छोटी सी लाइट दिखाई देता है। तो उसको अंदर डर गया, फिर भी उसने भगवान को याद करते रहा, मालूम नहीं क्या क्या उसने कोशिश किया, और चलता गया। तो 10 मिनट के अंदर वो जो लाइट जैसे क्लियर हो गया, और उसने देखा कि मैं तो मियामी पहुंच गया हूँ, मियामी के ऊपर वो घूम रहा है, वो आधा घंटा के से पहले ही पहुंच गया। तो उसको तो उसने अपना साइंटिस्ट है ना, तो वो अपने ढंग से बताया कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ये हुआ है इसीलिए ऐसे हुआ। परंतु हम सोच रहे थे कि ये जो हमारा जो नेचर या एनवायरनमेंट में जो रुचि है ना, मुझे समझ में आया, मालूम नहीं सत्य है कहाँ तक सत्य है, कि ये जो धरती है और ये जो समुद्र है, ये जो आकाश है, ये जो इसमें इतना बाबा कहते हैं हलचल हो रहा है, ये हलचली के कारण कहाँ भूकंप हो रहा है, कहाँ बर्फ पिघल रहा है। तो जैसे ऐसे धरती में ऐसे ऐसे जगह होगा जहाँ पर वो एक ही समय से सारी तत्व का कुछ वो चलता होगा। तो जैसे जो वहाँ पर जब पार गुजरता है उस वक्त, जब वो एक केओस है, हवक हो रहा है, तो वो अंदर इतने चले जाते हैं कि पता नहीं, अगर वो पायलट उस वक्त वो लूज कर देता कंट्रोल, तो शायद वो भी चला जाता। तो ऐसे देखते हैं कई ऐसी जगह है, यहाँ पर भी देखते हैं मॉरिशस पहले ज़माने में कैसा था। पहले ज़माने में इतना सुंदर था कि यहाँ पर इंग्लिश का जो एक वो था, एक ऑथर, उसका नाम था मार्क ट्वेन। वो जब आए ना तो मॉरिशस के ब्यूटी का उसने बोला कि ये तो जैसे स्वर्ग जैसे दिखता है, परंतु उसने मॉरिशस को स्वर्ग नहीं कहा। परंतु मॉरिशस वाले ना यहाँ के इतने जैसे अपने देश से प्यार करते ना, तो बोलते हैं कि उन्होंने लिखा कि भगवान ने स्वर्ग बनाया मॉरिशस को देखकर, वो सारा उठा दिए। परंतु सचमुच ही मॉरिशस, मैं छोटेपन में याद कर रही हूँ कि यहाँ को जो नदी था, वो नेचर था, इतना सुंदर था, बात मत पूछो। मुझे अनुभव है, हम लोग जब मैं बहुत छोटी थी, तो उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी चारों ओर नहीं आए थे। तो हमारा जहाँ पर गांव थे ना, जहाँ पर हम रह रहे थे, गांव नहीं था, टाउन ही था, परंतु वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जहाँ मैं रहती थी वहाँ नहीं आए थे। तो हम लोग जैसे अभी तक वो जो चिराग है ना उसके बल से जैसे दिखते थे। तो हम जब छोटे थे तो हम लोग नदी में जाते थे। तो नदी में क्या होता था, हम लोग कपड़े धोने जाते थे। ये जो नदी हमें याद है, इतना सुंदर था, अभी भी मैं स्वप्न में वो नदी को देखती हूँ। एकदम साफ शुद्ध पानी, जैसे हम लोग खेलते थे नदी में। वो जो माता जी जब कपड़ा धोती थी, हम भी थोड़ा थोड़ा मदद करते थे, परंतु हम पानी से खेलते थे, इतना अच्छा लगता था। और जब हम जहाँ रहते थे क्यूपिक में, वहां पर जो जो जिस जगह में रहते थे उस जगह बहुत बड़ा जमीन था। तो उस जमीन में जैसे एक जगह था, थोड़ा जैसे पहाड़ी की तरह था, उसमें से पानी निकल रहा था। उसको कहते हैं, मालूम नहीं हिंदी में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहते हैं सोर्स ऑफ वाटर, मालूम नहीं, जैसे जहाँ से पानी, और वो पानी निकल कर खेत में जाता था। तो वो पानी जैसे सवेरे सवेरे जब आप जाएंगे ना, तो पानी कुछ गर्म था, गर्म हॉट नहीं परंतु वार्म था, बहुत अच्छा लगता था। और जब साइक्लोन आता था यहाँ पर मॉरिशस में, एक खास बात है कि पहले ज़माने में, अभी अभी बहुत समय से नहीं है,
परंतु जब तूफान आता था ना तो चारों तरफ पानी, साफ पानी, बहुत सुंदर पानी। अब छोटे थे ना, तो छोटेपन में जैसे हम लोगों को हम लोग कहते थे चलो खेलते हैं पानी में, जब उससे साइक्लोन पास हो जाता था। तो मुझे उस समय भी, मुझे अभी अभी जब आपसे बात करते करते मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। बहुत समय पहले 1963 में समझती हूँ, बहुत बड़ा साइक्लोन हुआ था। वो साइक्लोन में जिस घर में हम थे, उस घर के जो छत है ना ऊपर से उड़ गया था। हमको मालूम नहीं था क्योंकि वो जो सीलिंग था वो तो कायम था। परंतु जैसे क्या हुआ कि मैं एक सेकंड के अंतर में मैं कुछ ढूंढने गया, एक इधर से उधर हट गया। जैसे मैं उधर हट गए तो ऊपर से जो टिम्बर थे, जो लकड़ी है ना ऊपर, वो एकदम जहां पर मैं खड़ी थी वहां गिर गई। तो मैंने देखा, देखो देखो भगवान जी मेरे मेरे को कितना जैसे बचा लिया। फिर जब हम लोग बोलते थे अब तो घर टूट गया, बाहर जाना है, ढूंढना है कहीं कहाँ पर सेफ्टी है, तो हम सब पेरेंट्स के साथ निकल चुके। जब वो पेरेंट्स के साथ निकल चुके तो वो लोग डर रहे थे, मैं तो बिल्कुल डर नहीं रही थी। मेरे तो जैसे बच्चे थे ना, तो बोला ये क्या है, ये तो मजा है पानी में खेलने। वो जो कहते आई ऑफ द स्टोम, साइक्लोन जब आता है ना तो बीच में कहते एक समय होता है, उसको कहते आई ऑफ द स्टोम। तो जब आई ऑफ द स्टोम यानी ये जो तूफान को आंख जो चलता है ना, तो तूफान को जब आंख चलता है तो एकदम काल्म होता है, एकदम शांत होता है। तो हम तो बोलते थे कि ये बड़े लोग क्यों डर रहे हैं, मेरे को तो डर नहीं है, बड़े अच्छा लगता है, मजा मजा आ लेते हैं। तो फिर मैं जब बड़ी हो गई तो मुझे अभी जब यज्ञ में चलते हैं तो एक खास प्रोग्राम हम लोग फॉलो कर रहे थे। वो एक भाई था, बाहर का भाई था, उसका नाम था ब्रायन बेकर। वो हमारे सब विश्व के हर एक सेंटर के एक एक बहनों से चुनकर वो प्रोग्राम कर रहा था, जिसको कहते हैं SML, सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप कोर्स। तो उसमें मुझे एक समझ में आया कि जो आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं, मतलब तूफान की जो आंख है वो हमारे अंदर भी है, जिसको आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। तो मैं कोशिश किया, मैंने बोला अभी मुझे वो स्थिति का सिर्फ समझ नहीं परंतु मुझे अनुभव होना चाहिए। तो जब मैं अनुभव उसका ढूंढने गया तो मुझे, क्या बात है, जैसे शब्द में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि सचमुच ही वो ऐसे स्थिति होता है जो एकदम हम ये जो ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है ना, शरीर का ये जो तत्व का आकर्षण होता है, उस आकर्षण से एकदम परे हो जाते हैं। और एकदम परम धाम का जो अनुभव होता है वो तो अद्भुत ही होता है, उसको तो हम वर्णन ही नहीं कह सक नहीं 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 कर सकते हैं। परंतु वो जो खींच है, अभी बार बार हम चाहते हैं कि फिर से वो स्थिति का अनुभव करें। और मैं समझती हूँ अभी जो हम समय गुजर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि हम अभी अंतिम समय पर पहुंच रहे हैं, कि अभी जो बाबा है ना सभी आत्माओं को फिर से वापस बुला रहा है, सबको एकत्रित कर रहा है। हमने भक्ति में एक गीत सुना था, टूट गई है माला, मोती बिखर चले। तो बाबा सब मोतियों को चुन रहे हैं। वैसे मैं समझती हूँ, मैं भारत का जो हिस्ट्री पढ़ती थी ना, महात्मा गांधी जी का जो कहानी था नॉन वायलेंस और ट्रूथ ना, सत्यता, सत्याग्रह और वो अहिंसा कहते हैं ना, तो उसके स्टोरी में मैं एक बात सुना हूँ कि मैं वो स्टोरी कब पढ़ी, वो जब ज्ञान में आने वाली थी, तो एक पुस्तक था, वो जो इंग्लिश और दो व्यक्ति थे, एक इंग्लिश और एक फ्रेंचमैन, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था। पुस्तक का जो टाइटल है फ्रीडम एट मिडनाइट। तो उस पुस्तक में दिखाया कि भारत में पार्टीशन के बारे में क्या था। तो जब मैं सुन रही थी, कहानी पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि मैं शायद वहां पर थी। अब मुझे पता नहीं, अभी मैं आप सभी से मिल रही हूँ, तो पहली बार नहीं मिल रही हूँ, 5,000 वर्ष पहले कहेंगे वैसे नहीं, तो 5,000 के अंदर भी अगर हम सब आपसे बात कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो मतलब शायद कहीं तो मिले होंगे, और वो याददाश्त तो है नहीं। तो ऐसे ही मैं समझती हूँ, जब ज्ञान की गुह्यता में जाते हैं तो जो हमारे गैलरी है, अंदर का मेमोरी है, उसमें थोड़ा थोड़ा जैसे बीच बीच में उभर आता है। तो खास मुझे दो बात और याद आती है कि अंदर से क्या, जैसे वो ये क्या कहेंगे, वो मेमोरी लेन में था। एक था कि मैंने
मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक छोटा सा पुस्तक दिया था, गीता। तो छोटा पुस्तक में था कि आरावली पर्वत में कुछ ऐसे शब्द थे। तो मुझे सिर्फ ये शब्द आया, आरावली पर्वत। जो मैं मधुबन पहली बार गई थी, तो मुझे देखना था कि वो क्या है आरावली। तो मैंने देखा कि जब हम माउंट आबू जाते हैं तो लिखा है आरावली रेंज ऑफ माउंटेन्स। मेरी पहली बार 1978 में मधुबन गई थी, तो मैंने वो देखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो, शायद मुझे इसीलिए वो पुस्तक मिला था कि मैं यहाँ पर पहुंचा। फिर दूसरा ये हुआ कि मुझे सोमनाथ मंदिर जो बाबा सुनाते हैं ना, उसका भी बहुत बहुत रुचि है। तो मैं वहाँ जाना चाहती थी। तो एक बार मधुबन गए तो दीदी दादी प्रकाश मणि कहती है, क्या जाना है आपको, वहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ नहीं है वहाँ पर। सचमुच ही नहीं बना था, कुछ रेनोवेशन नहीं हुए थे। तो कुछ साल हुए, मुझे ये इंटरेस्ट इतना था, मैं कोशिश कर गई। तो वहाँ भी जब मैं बैठी थी ना वो मंदिर के पास, तो मुझे ऐसे एहसास हुआ कि शायद मुझे कुछ इसका इसका कुछ वो अंदर उभरा, परंतु क्लियर नहीं आ रहा था। परंतु मैं एक बात सुनाऊं कि हमारे जो ये मॉरिशस में कम्युनिकेशन है, हम लोगों को एक परिवार, मुस्लिम परिवार से जैसे कनेक्शन है। तो वो मुस्लिम परिवार जो है ना, वहाँ पर एक बहन है। वो जो बहन है ना, वो यज्ञ को इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, छिपे छिपे ज्ञान सुनती है। और वो जो यज्ञ के प्रति कुछ देना चाहती है, तो हम वो जो भी देती है ना, हम सब मधुबन में ले जाते हैं। तो मेरे को ऐसे लगता है कि शायद ये आत्मा ने कहीं पर ये हमारा धर्म को छोड़कर उधर चली गई है। अभी उसको अंदर से कुछ उभर आता है, तो शायद उसके प्रति जैसे वो कुछ वापस कर रही है, अपने प्यार से या अपने जो सहयोग दे रही है, वो सब दे रही है। तो वैसे मैं समझती हूँ ये हमारा अंतिम समय गुजर रहे हैं, और हमें अति सूक्ष्म से सूक्ष्म पुरुषार्थ करके जल्दी से जल्दी तैयार करके जैसे आसानी से आत्माओं को मदद करे। जैसे कल का वरदान था, आज का वरदान था, बाबा ने कहा कि कैसे हम लोगों को विश्व का जानकारी बनकर सभी को वो रेज देना है। तो मैं समझती हूँ मुझे ये गहराई में जाना बहुत बहुत पसंद है। तो मैं कभी आप मीनेश भाई से सुनना चाहती हूँ कि आप सारे परिवार को क्या मिलता है, आप मुझे कुछ सुनाओ भी कि आप जब सभी के अनुभव सुनकर जब सुनते हैं, थक तो नहीं जाते हैं सुनते सुनते। मैं तो देखती हूँ आपके अंदर बहुत धीरज है, बहुत इंटरेस्ट है, आप लोगों को कुछ तो मिलता होगा बहुत जोरदार, इसलिए तो आप लोग ये प्रोग्राम कायम रखते हैं। आप मुझे भी कुछ सुनाइए। बिल्कुल, हर एक आत्मा का अपना विशेषता गुण होता है और उनके अनुभव अपने होते हैं, बहुत प्रेरणादायी बातें होती है। देखो जैसे आपकी विशेषता ये है कि सबकी विशेषता आपने देखी, सारे पूर्वजों की विशेषता आपने अपनी बुद्धि में रखी हुई है। सिर्फ बुद्धि में नहीं रखी है, लेकिन वो आपने एडॉप्ट किया है। तो हर एक की एक एक विशेषता आपने पकड़ी, तो सोचो आप कितने विशेष हो गए। तो ये विशेषता सभी भाई बहनों को सीखने को मिली। तो मूल तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अव्यक्त बाप दादा का ही डायरेक्शन है। हमारे डॉक्टर जैन भाई साहब ने एक बार पूछा था अव्यक्त बाप दादा को कि बाबा पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए क्या करे, तो बाबा ने बोला था कि अनुभव सुनो और सुनाओ। और फिर बरसों के बाद ड्रामा अनुसार ये कोरोना का सीन आया, लॉकडाउन हुआ, तो हमने झूम पे शुरू किया। तो उन्होंने हमें डायरेक्शन दिया कि आप अनुभव का सेशन शुरू करो, और हमने शुरू किया। अब क्योंकि डायरेक्शन बाबा का था, तो मदद भी बाबा की है, और इसलिए विश्व के कोने कोने में पड़ी हुई आत्माओं को हम मिल सकते हैं। ये मेरी थोड़ी बहुत मेहनत है, लेकिन मूल जो मदद है, बैकबोन है, वो बाप दादा है। बाबा का डायरेक्शन, बाबा की मदद है, और ये मिरेकल हुआ है। तो यकीनन मैं तो नहीं, लेकिन हमारे सभी भाई बहनों को भी मैं मुबारकबादी देता हूँ। इतने महीनों से वो सुनते हैं और अपने आप को लाभान्वित करते हैं। और बहुतों का ये अनुभव है, सिर्फ इस वक्त जो सुन रहे हैं वो नहीं, लेकिन बाद में सोशल मीडिया में भी ये जाता है, तो उनसे भी हमें रिपोर्ट मिलती है कि हमको बहुत फायदा हो रहा है। हम यज्ञ को जान पाते हैं, यज्ञ वासियों को जान पा रहे हैं। तो बहुत सारी बात जो है वो एक दूसरे के प्रति लेन देन द्वारा ये हो रही है। तो इसमें बहुत कुछ शामिल है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, मिलते रहेंगे। जी जरूर जरूर, आपने बहुत अच्छे से आपका भी अनुभव सुनाया, और डॉक्टर साहब भी हाजिर है, तो मैं डॉक्टर साहब जी से भी कहूँगा आप भी गायत्री बहन जी से मिले। डॉक्टर साहब, ओम शांति। ओम शांति। So happy to see you.
अच्छा, आप अपने अनुभव सुना के कितने, आपको तो खुशी मिली लेकिन हम सबको भी बहुत खुशी मिली। और यही जानने को मिला ने ये कार्यक्रम से कि सभी को अनुभव हो रहा है। सारे विश्व में इतना सारा बाबा कार्य कैसे करा रहा है, सबको अनुभव करा के करा रहा है। वंडरफुल वंडरफुल। तो आपने ये भी बात स्मृति में लाई कि सबको अनुभव होता है, लेकिन इतने सारे अनुभव तो कैसे सबको सुना सकते हैं। लेकिन जो जो विशेष आप जैसे हैं उनके अनुभव सुन के सबको प्रेरणा मिलती है, एक दूसरों को भी हम अनुभव सुनाते रहते हैं। तो ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी, अनुभव भी अच्छा सुना और इससे प्रेरणा भी अच्छी मिली कि कैसे बाप दादा हम सबको एक करके एकता में लाके सारे विश्व की सेवा करा रहे हैं। सारे विश्व को भी उठाना है, टेलवेज करना है। तो ये सब ऐसे ऐसे कार्यक्रम चारों तरफ होते रहते हैं और ये मालूम पड़ता है कि बाबा कैसे कहाँ कहाँ कोने कोने में बाबा के वंडरफुल बच्चों को कैसे निकाला है और कैसे अनुभव कर कर रहे हैं वो। तो इससे बाबा की ताकत का ख्याल आता है कि बाबा क्या है और कौन है, कैसे करता है। उन्होंने तो पहले दिन आके कहा कि मुझे सारे विश्व को सुख शांति में ले जाना है। तो वो कैसे ले जा रहे हैं ये सब के अनुभव सुनते हैं तो ख्याल आता है कि बाबा बच्चों को मदद करते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आके इस सम्मेलन में पार्ट लेके हमको खुशी दी। और बाबा तो ऊपर से देखते ही होंगे वाह बच्चे वाह करते हैं, तो हम भी कहेंगे हम, हाँ, बहुत खुशी कहते हैं होती वाह है। मेरा परिवार, वाह मेरा बाबा और वाह हम सब, कहाँ मॉरिशस और कहाँ गुजरात, हाँ, मॉरिशस तो एक बिंदु है। लेकिन सब मिलते हैं। और कुछ आपको कह रहे थे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो प्रोग्राम का निर्माण किया, आपने बाबा का जो बाबा दर्शन ने किया, किया है, ये तो ड्रामा में बाबा ने किया है। ये जो है ना, मैं समझती हूँ बाबा जो है अभी घेराव डाल रहा है चारों हाँ, तरफ घेराव से, डाल रहा है, घेराव घेराव डाल डाल रहा रहा है। अभी है। अंतिम सीन को देखने में हमको बहुत मजा आएगा। हम सब तैयार होकर के साथ साथ जाएंगे। बिल्कुल, जिसको ये स्मृति है कि अंतिम है वो तो बहुत आगे जाएंगे। यही स्मृति जरूरी है कि ये अंतिम टाइम चल रहा है। ये सचमुच ही आपने सच कहा। ओके भैया, चलते हैं, छुट्टी लेते हैं। अच्छा, योग करा के फिर छुट्टी हाँ, लीजिए। जरूर जरूर। हम सब इकट्ठे योग करेंगे आपकी श्योर श्योर, योग जरूर। के। ओम शांति। थैंक यू सो मच।